नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6 सेम, कोर्स पेडागोगी ऑफ सिविक्स, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। Students, today our lesson session is evaluation in civics teaching part 3, techniques or methods of evaluation. We will discuss first in English, then after Hindi. Introduction. Evaluation has become an integral part of the teaching process and has become a very important place. Evaluation is a process by which comparisons are made between the values of education and the stated objectives. The major methods of evaluation are as follows. First, affective side evaluation. In civics education, evaluation of the objective of the desired behavioral changes of the emotional aspect of the students in is important. The following techniques and equipment are suitable for this. Checklist first, second, rating scale or level measurement, third, anecdotal record or event form, fourth, quantitative record or accumulated records. Accumulated records in first, introductory information, second, family background, third, the presence, fourth, physical health, fifth, academic achievement, sixth, co-educational activity, seventh, special statement, eighth, personal qualities, ninth, interest and accruals, and fifth, observation or supervision. Sixth, interview. After A, first and B, oral test or viva voice. It is an oral method of the traditional examination system. In a small class where students' linguistic abilities are underdeveloped, this method is suitable. It is appropriate to use that method by making oral questions and answer objective. In civics, teaching should be conducted in class 1st to 3rd with the help of verbal checklist or level value of etiquette and other general social knowledge. C. Practical examination. They are often used to test skills in social studies. Maps, sketches, graphs, etc. can be used for the construction of tools and their skills. Thinking at the time of deliberation, reasoning and decision making skill, etc.
by giving related practical work. D. Written examination. In this, students have to answer the questions in writing. These questions are scored by the teacher, which are of the following type. In this first essay questions, these questions are broad nature. They have higher word limits. Students take more time to write them. Chart and example, etc. are used in these questions. Second, short question. These questions are not of broad nature. They do not exceed the word limit. Students do not take much time to write them. Here, charts and graphs, etc. are not entered. Third, objective questions. It is the smallest among the types of questions. They have the lowest marks, mostly used in competitive exams. More thrust is found in them. This session prepared by डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. लेट्स इन हिंदी. आज का जो सेशन है, टॉपिक है, हम उस पर बात करेंगे. और इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना की. मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनकर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बन गया है. मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्यों तथा निर्दिष्ट उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है. मूल्यांकन की कुछ प्रमुख प्रविधियां हैं जो कि निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं. पहली है भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन. नागरिक शास्त्र शिक्षण में विद्यार्थियों के भावात्मक पक्ष के वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों संबंधी उद्देश्यों का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है. इसके लिए निम्नलिखित प्रविधियां एवं उपकरण उपयोग में काम लिए जाते हैं. पहला है पड़ताल सूची, चेकलिस्ट. दूसरा है स्तर माप, रेटिंग स्केल. तीसरा घटना वृत्त प्रपत्र, एनेक्डेटल डेटल रिकॉर्ड. फोर्थ संचित अभिलेख, क्यूपिटेटिव रिकॉर्ड. और इसमें है कुछ जैसे परिचयात्मक सूचना, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उपस्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक क्रियाकलाप, विशेष विवरण, व्यक्तिगत गुण, रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ. अब 4 उपकरण के बाद में बात करेंगे 5 की. अवलोकन या पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन. और छठा है साक्षात्कार, इंटरव्यू. ठीक है, ये पहला भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन था. अब हम बात करते हैं मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्ट. यह परंपरागत परीक्षा प्रणाली की मौखिक विधि है. छोटी कक्षा में जहां विद्यार्थियों की भाषागत योग्यता अविकसित होती है, यह विधि उपयुक्त होती है. इस विधि का प्रयोग मौखिक प्रश्नोत्तर को वस्तुनिष्ठ बनाकर प्रयोग करना है. नागरिक शास्त्र शिक्षण में 1 से 3 तक के विद्यार्थियों में शिष्टाचार और अन्य सामान्य समाज ज्ञान की मौखिक जांच पड़ताल सूची या स्तर मान की सहायता से की जाती है. अब अगला है प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट. इनका प्रयोग बहुधा कौशल की जांच करने के लिए किया जाता है. नागरिक शास्त्र शिक्षण में मानचित्र, रेखाचित्र, ग्राफ आदि उपकरणों के निर्माण और उनके अध्ययन का कौशल विचार विमर्श के समय चिंतन, वर्क और निर्णय करने के कौशल आदि की जांच संबंधित प्रायोगिक कार्य देकर की जाती है. इसके बाद है लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट. इनमें विद्यार्थियों को लिखित रूप से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं. ये प्रश्न शिक्षकों द्वारा बनाए जाते हैं जो निम्न प्रकार के होते हैं. पहला निबंधात्मक प्रश्न. ये प्रश्न विस्तृत प्रवृत्ति वाले होते हैं. इनकी शब्द सीमा अधिक होती है.
इनको लिखने में विद्यार्थियों को समय ज़्यादा लगता है। इन प्रश्नों में चार्ट और उदाहरण इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है लघुतरात्मक प्रश्न। ये प्रश्न विस्तृत प्रवृत्ति वाले तो नहीं होते हैं, इनकी समय शब्द सीमा जो है वो अधिक नहीं होती है। इनको लिखने में विद्यार्थियों को अधिक समय नहीं लगता है और इसमें चार्ट और ग्राफ आदि का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। इसके बाद तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्नों के प्रकारों में सबसे छोटा है, इनके अंक सबसे कम होते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकांशतः अधिक प्रश्नों में ये अधिक प्रयोग लिया जाता है और इसमें अधिक सच्चाई अर्थात अधिक वैज्ञानिकता पाई जाती है। क्योंकि मान लीजिए अगर ए ब स द 4 ऑप्शन है तो उसमें से एक तो कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसमें से नंबर कटने की कोई भी संभावना नहीं होती है। एक नंबर का तो एक ही नंबर उसमें आता है। तो ये जो सेशन है वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो आप देखते रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।